آج پھر حاجی صاحب کے گھر افطاری کی بہت بڑی دعوت تھی۔ بیوی اور بچوں نے قیمتی سوٹ پہن رکھے تھے۔ ان کے گھر پر آنے والے مہمان بھی سب کے سب امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کسی خاتون کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ روزہ بس بھوک پیاس کا ہی نام تھا۔ وہ بھی آج اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ افطار پارٹی تھی۔ بڑے بڑے امیر لوگ اس دعوت میں بلائے گئے تھے، لیکن خواتین میں آپس میں ہونے والی بات صرف فیشن کے متعلق تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک خاتون کو بلایا گیا جو کہ درس دینے میں کافی مشہور تھی۔ انہوں نے رمضان المبارک کے فضائل بیان کیے تو ان خواتین نے بس کچھ دیر کے لیے ہی اپنے دوپٹوں کو سروں پر رکھا تھا۔ جیسے ہی دعا ہوئی سر سے دوپٹے ہٹ چکے تھے۔ افطاری کا اہتمام حاجی صاحب کے بنگلے کے بیرونی لان میں کیا گیا تھا۔ مختلف قسم کے کھانوں سے ٹیبل بھرے پڑے تھے۔ کئی قسم کے تو صرف مشروبات ہی تھے جن سے روزہ کھولا جانا تھا۔ ہر قسم کی ڈش موجود تھی اور مردوں عورتوں میں پردے کا بھی کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ سبھی ایک ہی جگہ پہ موجود تھے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان کی صدائیں بلند ہوئیں تو سبھی لوگ مشروبات کا گلاس اٹھا کر پینے لگے۔ کسی کو بھی افطار کی دعا تک یاد نہیں تھی۔ کھانے پینے کا ہنگامہ شروع ہو چکا تھا کہ وہیں دور کھڑے گھر کے چوکیدار کے پاس دو یتیم اور لاوارث بچے آ کر کھانا مانگنے لگے۔ ننگے پاؤں تھے اور میلے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ ہونٹ خشک تھے، ان کی بھوک پیاس سے بری حالت تھی۔ دونوں ہی 7-8 سال کے تھے اور اس پر تھے بھی روزے میں۔ کہنے لگے کہ چاچا ہمیں بھی تھوڑی سی افطاری کرا دو، صرف سوکھی روٹی پانی سے ڈبو کر کھا کر روزہ رکھا ہے۔ دونوں کی نظریں لان میں موجود لوگوں پر تھیں جو قسم قسم کے کھانے کھا رہے تھے اور کئی چیزیں تو کھانے کے دوران ان کی پلیٹوں سے زمین پر گر رہی تھیں۔ لبالب سب کی پلیٹیں بھری پڑی تھیں۔ پیٹ میں اتنی گنجائش نہیں تھی، لیکن پلیٹیں یوں بھری تھی کہ جیسے پہلی بار روزہ افطار کیا ہو، یا شاید افطاری کے بعد انہیں سحری تک کچھ کھانے کو ملے گا ہی نہیں۔ افطاری کرنے کے بعد پلیٹیں ویسے بھری بھری ٹیبل پر رکھ دی گئی تھیں جنہیں ملازم کچرے کے ڈبوں میں ڈال رہے تھے۔ چوکیدار نے ان دونوں بچوں کو بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ کہنے لگا حاجی صاحب کے گھر میں افطاری ہے، دیکھ نہیں رہے کہ کتنے امیر لوگ وہاں پر آئے ہیں؟ اپنی حالت دیکھو، کیا تم لوگ اس قابل ہو کہ ایسی محفلوں میں جا کر افطاری کر سکو؟ چلو بھاگو یہاں سے، ورنہ ایک ایک تھپڑ منہ پر لگاؤں گا۔ کمینے بھوکے ننگے کہیں کے آ جاتے ہیں یہاں پر افطاری کی بھیک مانگنے۔ حاجی صاحب کا کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ پوری مارکیٹ میں ان کی 10 دکانیں تھیں۔ پیسے کی ریل پیل تھی۔ ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ کرنے جاتے تھے اور انہیں دیکھنے والی نظر رشک بھری ہوتی تھی کہ کیسے دیندار اور نیک ہیں۔ اللہ پاک انہیں رمضان المبارک میں ہر سال عمرہ کرواتا ہے، لیکن ان کے گھر کا ماحول بالکل الگ ہے۔ بیٹے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اول تو روزہ ہی نہیں رکھتے تھے، لیکن جس دن افطار پارٹی ہوتی مجبوراً انہیں روزہ رکھنا پڑتا تو پورا دن دہائی مچائے رکھتے کہ کیا مصیبت ہے، کب افطاری ہوگی، بھوک سے پیٹ میں چوہے ناچ رہے ہیں۔ نہ نماز کی ہوش تھی، نہ ہی کلام پاک پڑھنے کا شوق۔ والدہ آتی تو کلام پاک لے کر فٹافٹ سے پارہ ختم کرنے کی کرتی تھی تاکہ لوگوں میں یہ بتا سکیں کہ انہوں نے اس رمضان 2 سے 3 کلام پاک ختم کیے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ کلام پاک کی تلاوت کرتی جاتی اور ساتھ ساتھ اپنی ملازمہ کو کام کی ہدایت بھی دیتی جاتی۔ ارے نصیبو کمبخت ماری، ٹھیک سے صفائی تو کر لے، ایک تو جب تک میں نہ دیکھوں گھر کے کام کاج ہی ٹھیک سے نہیں ہوتے۔ ارے اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کوئی سکون سے عبادت نہیں کرنے دیتا۔ یہ کہنے کے بعد فوراً سے نظریں کلام پاک پر گئیں اور تیزی سے ہونٹ ہلنے لگے۔ ہونٹ ہلتے ہلتے اپنی شہادت کی انگلی تیزی سے کلام پاک کے صفحوں پر چلا رہی تھی۔ 1 منٹ نہیں گزرا کہ کلام پاک کے صفحے کو پلٹا گیا تھا۔ نہ آیتوں کو ٹھیک سے ادا کیا گیا تھا، نہ حروف کی ادائیگی کا خیال کیا گیا تھا، بس نظروں سے لفظوں کو گزارا گیا تھا اور صفحہ پلٹ چکا تھا۔ کبھی دھیان ملازمہ کی جانب چلا جاتا تو کبھی اپنے ہاتھ کے بڑے ناخنوں کو دیکھ کر انہیں منہ میں لے کر کوئی نئی سوچ دماغ میں گھومنے لگتی۔ پھر نہ جانے کیا خیال آیا کہ حاجی صاحب کی بیگم نے ملازمہ کو اپنے پاس بلایا۔ کہنے لگی، ارے او نصیبو، ادھر آ ذرا۔ ملازمہ فوراً سے مالکن کا حکم سن کر ان کے پیروں میں آ کے بیٹھ گئی۔ حاجی صاحب کی بیگم نے دائیں بائیں جانب دیکھا کہ کوئی دوسرا ملازم دیکھ تو نہیں رہا، پھر رازداری سے نصیبو سے کہنے لگی، بات سن، تیرے محلے میں کوئی ایسی عورت ہے جو ہدیہ لے کے کلام پاک پڑھ دے؟ یہ سن کر نصیبو نے نافہمی سے اپنی مالکن کو دیکھا تھا۔ کہنے لگی، بی بی جی میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں پیسے دوں گی اور وہ عورت میرے لیے قرآن پاک پڑھ دے گی۔
नसीबो ने नाफहमी से फिर सर खुजाया। कहने लगी, ऐसा क्यों बेगम साहिबा? बेगम साहिबा कहने लगी, अरे समझा करना, जुम्मतुल विदा के मौके पर मुझे सबको ये बताना होता है कि मैंने 3 से 4 बार कुरान पाक ख़त्म किया है। अब इतना बड़ा कलाम पाक भला इतनी जल्दी 3-4 बार ख़त्म हो सकता है क्या? मुलाजमा कहने लगी, बीबी जी तो आप कह दें कि एक ही बार पढ़ा है, इसमें ऐसी कौन सी बात है? नसीबों की बात सुनकर उन्होंने अपने सर पर हाथ मारा और कहने लगी, बेवकूफ़ औरत, हम लोगों की माशरे में बड़ी इज्जत है, ये नहीं कह सकती मैं। तू बस मुझसे हदिया ले और अपने इलाके में कोई ऐसी औरत ढूंढ जो मुझे 3 से 4 बार कलाम पाक पढ़कर दे दे, ताकि मेरी बात झूठी भी ना हो और फिर उस औरत का भी फायदा हो। मैं इसके घर राशन डलवा दूंगी। बेटियां अपने कमरों से बाहर निकलकर अपनी वालदा के पास बैठकर कहने लगी, अम्मी ये क्या मुसीबत है? आपने हमें क्यों ये रोज़ा रखवाया है? मुझसे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही। जोहर की नमाज के बाद मुंह उठाकर अपने कमरे से बाहर आई थी। नमाज की तो होश ही नहीं थी, रोज़ा भी वबाले जान लग रहा था। माँ कहने लगी, अरे भाई, आज तुम्हारे अब्बा के बहुत बड़े दोस्त के घर में अफ्तार पार्टी है, अब क्या वहाँ पर खाती पीती अच्छी लगोगी? सबको ये भी तो बताना है कि तुमने रोज़ा रखा है। बेटी ने ये सुनकर मुंह बिगाड़ा था। कहने लगी कि देखो, अगर भूले से पानी पी लो या कुछ खा लो तो अल्लाह के यहाँ इसकी माफ़ी है। तुम भी भूले से कुछ खा पी लेना, पेट भी भर जाएगा और रोज़ा भी नहीं टूटेगा। माँ ने एक नया फतवा सुनाया था कि जो जी चाहे खा लो और कह देना कि भूल कर खा चुकी हूँ। बहरहाल फिर अपनी बेटी से कहने लगी, ऐसा करो कि एसी ऑन करके कमरे में बैठ जाओ, प्यास की शिद्दत कम लगेगी। सोचने वाली बात ये थी कि जब वालिद इतना दीनदार था और रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा ख़ास तौर पर खाना काबा में जाकर गुजारता था, तो फिर औलाद में दीनदारी क्यों नहीं आई? लेकिन बाकी हकीकत कुछ और ही थी। जुम्मतुल मुबारक के दिन तक हाजी साहब अपने घर तक पहुंचे थे। घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो आस पड़ोस के कई लोग हाजी साहब से मुसाफा करके अपने घरों की जानिब आगे बढ़ चुके थे। सफ़ेद रंग का कुर्ता शलवार, सर पर पगड़ी बांधे वो अपने आप में एक नुमाया शख्सियत रखते थे। घर में दाखिल हुए तो सबसे पहले हाजी साहब की बीवी बाहर सेन में ही कुर्सी पर बैठी थी। हाजी साहब को आता देखकर फौरन उठ खड़ी हुई। हाजी साहब भी बातें करते हुए बाहर सेन में ही लगी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। 3-4 रोज से लगातार बारिशों की वजह से मौसम काफी ठंडा हो चुका था। अभी हाजी साहब को बैठे हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि जब अंदर से इनकी छोटी बेटी मुंह बसोरती हुई बाहर आई। बेटी को बाहर आता देखकर हाजी साहब फौरन कह उठे कि मेरे लिए पानी का गिलास भी भर कर ले आओ। सुबह से एक घूंट पानी भी हलक से नीचे नहीं उतारा। इतना सुनना था कि हाजी साहब की छोटी बेटी फौरन तड़क कर कहने लगी कि वाह अब्बा जी वाह, हमसे आप रोजे रखवाते हैं और खुद आप पानी पियेंगे, कुछ तो लिहाज कर लें, अब एक रोजेदार से आप पानी मंगवाएंगे। हाजी साहब अपनी बेटी को घूर कर देखने लगे, कहने लगे कि देख रहा हूँ कि कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगी है तेरी माँ तो तुझे कुछ समझाती नहीं है, लगता है मुझे ही तुझको सीधा करना पड़ेगा। सामने ही हाथ में तस्बीह लिए बैठी हाजी साहब की बीवी तो फौरन ही अपने मुंह पर हाथ रख चुकी थी। फौरन पैर की ठोकर हाजी साहब को पैर पर मार कर कहने लगी कि कुछ तो खुदा का खौफ करो, ये तो देख लिया करो कि बैठे हुए कहाँ पर हो। आसपास मुलाजिम काम कर रहे हैं और इनके सामने शुरू हो गए। कितनी मर्तबा आपको कहा है कि कुछ भी खाना पीना हो तो कमरे में बैठकर खाया करो। इतना सुनना था कि हाजी साहब फौरन तड़क कर बोले थे। गुस्से से वहाँ पर काम करते मुलाजिमों को घूर कर कहने लगे कि ये मेरा घर है, रोज़ा भी मैंने रखना है, मैं रखूँ ना रखूँ इससे किसी का क्या जाता है। खैर से अल्लाह ताला के नेक बंदों में से एक हूँ, तभी तो हर साल जाकर हज करके आता हूँ। रमज़ान में उम्रे की अदायगी करता हूँ, आखिरी 10 रोज़े मेरे हरम शरीफ में गुजरते हैं। नेक हूँ तभी तो अल्लाह पाक अपने घर में भी बुला रहा है। अब बीमारी वाली जान है, भूख से मुझसे रहा नहीं जाता, भला मैं कैसे रोज़े रखूँगा। फिर रोज़ अफ्तार पार्टियाँ करवाकर लोगों को अफ्तार भी तो करवाता हूँ। हाजी साहब की ये बात सुनकर इनकी बीवी तो खामोश हो चुकी थी। कुछ देर बाद ही वहीं सेहन में बैठकर वो फल काट कर खाने लगे। आसपास काम करने वाले मुलाजिम और चौकीदार हाजी साहब को ऐसा करते हुए देखकर नज़र फेर चुके थे। ये तो बंदे और खुदा का पर्दा हुआ करता है। अगर किसी बीमारी की वजह से रोज़ा ना भी रख सके तो कम से कम दूसरे रोज़ेदार के साथ का ख्याल रखना चाहिए। बंद कमरे में ही खाना पीना चाहिए ताकि खाने को देखकर रोज़ेदार उलझन महसूस ना करे। मगर बहरहाल इन्हें कौन समझाता। बाहर दुनिया के सामने तो हाजी साहब की लोग मिसालें दिया करते थे, कहा करते थे कि हाजी साहब वाहिद बुजुर्ग हैं,
जो इस उम्र में पहुंचने के बावजूद पूरे रोजे रखते हैं। इनकी रातें इबादत में गुजरती हैं। अल्लाह ताला के बड़े ही नेक बंदे हैं, मगर हकीकत क्या थी ये तो इस घर के दरो दीवार और इसमें बसने वाले लोग ही जानते थे। ना सिर्फ हाजी साहब की बीवी और बेटे बेटियां, बल्कि हाजी साहब खुद भी ऐसे ही थे। ये तो बस लोगों में अपनी इज्जत बनाए हुए थे। उस शाम अफ्तार पार्टी के लिए वो सभी खूब तैयार होकर अपने दोस्त के यहाँ गए थे, जहाँ पर कई लड़के लड़कियाँ मौजूद थे। हाजी साहब तो अपने जैसे लोगों के पास बैठकर खुशखबरियों में मसरूफ हो गए। हाजी साहब की बीवी भी अपनी ही उम्र की औरतों के साथ बैठी बातों में लग चुकी थी, जबकि इनके बेटे बेटियां एक साथ बातों में मशगूल कह के लगा रहे थे। किसी को कोई परवाह नहीं थी कि वो क्या कुछ करते फिर रहे हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक ये सब कुछ पसंदीदा है भी कि नहीं। हाजी साहब की दोनों बेटियां वहाँ पर मेहमानों में आए हुए अमीर तरीन लड़कों के साथ बातों में मशगूल थी। वो एक दूसरे के हाथों पर हाथ मारकर ताली बजा रहे थे और किसी बात पर हंस रहे थे। कुछ देर बाद अफ्तारी का दौर चला। एक मर्तबा फिर वही कुछ हुआ जो कुछ हमेशा से होता रहा था, यानी बहुत ज़्यादा खाना ज़ाया हो चुका था। घर के लॉन में ही ये सारा बंदोबस्त किया गया था। जैसे ही सब मेहमान उठकर दोबारा लाउंज में गए तो घर के बाहर खड़े कई गरीब बच्चे और बच्चियां, जो कि इस ताक में बैठे थे कि जैसे मेहमान खाना खाकर उठे वो अपनी थैलियों में बचा हुआ खाना भर कर ले जाएं। वो फौरन घर के सहन में धावा बोल चुके थे। घर के मुलाजमीन उस वक्त मेहमानों को देख रहे थे। कुछ टेबल्स की सफाइयां कर रहे थे कि जब ये गरीब बच्चे घर में दाखिल होकर भाग भाग कर प्लेटें साफ करने लगे। ये मंजर देखना था कि वहाँ पर खड़े मुलाजमीन इन्हें झिड़क कर वहाँ से भगाने लगे। हाजी साहब और इनके दोस्तों ने जब ये मंजर देखा तो गुस्से से आग बबूला हुए थे। घर का मालिक जिसने ये अफ्तारी दी थी वो गुस्से से आगे बढ़ा और अपने मुलाजमों से कहने लगा कि कम बख्तों, इन हराम खोरों को मारकर भगाओ यहाँ से। भूखे नंगों की इतनी औकात ही नहीं है कि मेरे घर में दाखिल हो सकें। ज़रा तमीज़ नहीं है, बस चोरी करना आता है। इनका बस चले तो हमें भी बेच कर खा जाएं। मुलाजमीन ने अपने मालिकों का हुक्म सुना तो इन बच्चों को मारने लगे। इनकी थैलियों में मौजूद बचा हुआ खाना भी छीन लिया और धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। वो बच्चे मार तो खा ही चुके थे। मुलाजमों के आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगे कि वो खाना हमें वापस दे दो। कई रोज से हमने कुछ नहीं खाया, हमारा पेट भर जाएगा। मगर वो मुलाजिम इन्हें मार कर वहाँ से भगाने लगे थे। बच्चे सिसकते हुए भूखे ही वहाँ से चले गए। हाजी साहब से इसी महफिल में इनके एक दोस्त ने पूछ लिया कि कितनी ज़कात देते हैं। ज़कात का नाम आना था कि एक मर्तबा हाजी साहब बुड़बड़ाए, क्योंकि इतनी धन दौलत होने के बावजूद आज तक उन्होंने किसी गरीब की कोई मदद नहीं की थी। हाँ, अलबत्ता लोगों में बहुत बड़ा चर्चा बना कर रखा था कि वो कैसे कैसे लोगों की मदद करते हैं। अभी भी उन्होंने ऐसा ही किया था कि लोग मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। अगले रोज एक बात हाजी साहब की बीवी ने नोट की थी कि रमजान मुबारक में इन गरीब बच्चे बच्चियों का तांता कुछ ज्यादा ही बन जाता है। जब देखो घर के दरवाजे पर कोई ना कोई मांगने वाला खड़ा होता है। उस रोज जब हाजी साहब तरावी की नमाज पढ़कर घर में आए तो कहने लगी, हाजी साहब, अल्लाह ताला का हम पर कितना करम है। हम लोग अमीर कबीर लोगों में से जाने जाते हैं। गांव वाले हम सबकी बड़ी इज्जत करते हैं। अगर हम ज़कात भी अदा कर दें तो कितना अच्छा होगा। ये गरीब लोग भी पेट भरकर खाना खा लेंगे। इनके दिल से हमारे लिए दुआएं निकलेंगी, हमारे बच्चों के लिए दुआएं निकलेंगी तो हमारे बच्चों के नेक नसीब होंगे। इनकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं आएगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाजी साहब जो सोने की तैयारियों में थे, जब अपनी बीवी के मुंह से ये अल्फाज सुने तो ठटक कर इसकी जानिब देखा था। कहने लगी कि होश में तो हो, तूने अभी खुद ही कहा ना कि खुदा ने हमें इस हाल में रखा है, तो इनको भी उसी खुदा ने इस हाल में रखा है। हम नेक लोग हैं, इबादतें करते हैं, तभी तो अल्लाह ताला ने हमें इस कदर रिस्क अता कर रखा है। अगर इन भूखे नंगे लोगों को अल्लाह ताला ने इस हाल में रखा है तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है? आम खा और गुठलियाँ ना गिन। मैं कोई ज़कात नहीं देने वाला, बिला वजह मेरा दिमाग खराब करती फिरती है। हाजी साहब की बात सुनकर इनकी बीवी खामोश हो चुकी थी। हाथ पर हाथ रखकर कहने लगी, मेरी बला से जो कुछ मर्जी करते फिरें, मुझे क्या। मैं तो इसीलिए कह रही थी कि गांव में मजीद वाह हो जाएगी, लोगों में इज्जत बढ़ जाएगी। इतना सुनना था कि हाजी साहब कहने लगे कि इसकी तो फिक्र ना कर, मैं ज़कात के नाम पर अपने ही कुछ लोगों को खड़ा करके सामान पकड़ा दूंगा। तस्वीरें वगैरह बन जाएंगी तो समझो इज्जत ही इज्जत है। यह सुनकर हाजी साहब की बीवी खुश हो चुकी थी। वक्त यूं ही आगे बड़ी तेजी से बढ़ने लगा था।
रोज़े तेज़ी से आगे जा रहे थे। अब तो कोई भिखारी भी हाजी साहब के घर के बाहर नज़र नहीं आता था। हाँ, अगर कोई शख्स गली से गुजर रहा होता और कोई भिखारी या मांगने वाला बच्चा आ जाता तो हाजी साहब अपनी जेब से 50-100 रुपए का नोट निकालकर इस बच्चे को दे दिया करते, ताकि देखने वालों में इनकी इज्जत बरकरार रहे, वरना तो बच्चे को गालम गलोच देने तक से गुरेज नहीं करते थे। एक रोज़ हाजी साहब अपनी बीवी से कहने लगे कि बच्चियां जवान हो चुकी हैं, बड़ी बेटी की अब शादी कर देनी चाहिए। वो अपने ही भाई के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे, मगर जब हाजी साहब की बड़ी बेटी ने ये सुना तो गुस्से से फट पड़ी। कहने लगी कि अम्मा समझा दो पापा को, मैं बिल्कुल भी इस काले कव्वे जैसी शक्ल के हमाद के साथ शादी नहीं करने वाली। मैं शादी करूंगी तो अपनी मर्जी से। इतना सुनना था कि हाजी साहब की बीवी ने एक थप्पड़ अपनी बेटी के मुंह पर मार दिया। कहने लगी, जानती भी हो तो क्या बकवास कर रही है? अगर तेरे अब्बा ये अल्फाज सुन लेते, खड़े खड़े तुझे चीर के रख देते। कुछ भी बोलती रहती है, पसंद की शादियां करेगी। अरे हमारे खानदान में तो निकाह भी सिर्फ लड़की का दुपट्टा दिखाकर कर दिया जाता है, और तू पसंद की शादी की बात कर रही है। माँ की डांट सुनकर वो लड़की तो फिलहाल चुप हो चुकी थी, मगर अंदर ही अंदर वो जिद पकड़ चुकी थी कि किसी भी हाल में अब्बा के भतीजे के साथ शादी नहीं करेगी। जैसे जैसे रमज़ान जा रहा था, लोग ज़कात अदा कर रहे थे। इसी के साथ ही हाजी साहब अपने ही जैसे लोगों के साथ उम्रे की अदायगी का भी प्लान बना चुके थे। उस रोज़ जब हाजी साहब घर लौटे तो अचानक एक खातून भागती हुई इनके घर के बाहर आई थी। हाजी साहब ने इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया था, मगर वो खातून घर के बाहर ही खड़ी होकर दरवाज़ा बजाने लगी। चौकीदार इसे वहाँ से उठाने लगा, मगर वो रोते हुए कहने लगी कि मुझे एक मर्तबा हाजी साहब से मिलने दो, मुझे इनसे एक ज़रूरी काम है, मैं इनका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मैंने तो इनके बड़े चर्चे सुन रखे हैं कि वो गरीबों की मदद करते हैं, फरिश्ता हैं फरिश्ता। आज तक इनके दर से कोई भी खाली नहीं लौटा। मैं भी बड़ी आस लेकर इनके दरवाजे पर आई हूँ। हाजी साहब ने जब उस खातून के मुंह से ये अल्फाज सुने तो वहीं पर रुक चुके थे। चौकीदार को इशारा किया कि इस खातून को घर के अंदर आने दो। चौकीदार ने भी अपने मालिक की बात सुनकर दरवाज़ा खोला तो वो खातून अंदर आई। हाजी साहब इसे सरता पैर तक देखने लगे थे। वो खातून 28 से 30 साल की उम्र के दरमियान की थी। सफ़ेद चादर से अपना चेहरा ढक रखा था। हाजी साहब ने इसे देखा और अपने मेहमान खाने में ले गए। कहने लगे कि बताओ क्या मसला है, यूं गली में क्यों शोर करती फिर रही हो। उस औरत का नाम कनीज़ था, इसी गांव की रहने वाली थी, मगर इसका घर हाजी साहब के घर से काफ़ी दूरी पर था। वो रोती हुई वहीं फर्श पर बैठ गई और कहने लगी कि हाजी साहब मैं बेवा हूँ, मेरे शौहर का किसी ने कत्ल कर दिया था। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुझे मेरी जान से भी बढ़कर अजीज़ हैं। मैं लोगों के घरों में काम करके इन्हें पालने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मेरा ये हाथ चला तो मालिक ने मुझे काम से ही निकाल दिया। अब मुझे कोई भी काम पर नहीं रखता। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। रमज़ान है तो सारा सारा दिन रोज़े की हालत में रहते हैं। कहीं से सूखी रोटी बची हुई मिल जाए तो बच्चों को खिला देती हूँ, मगर अब तो रमज़ान है और आप जैसे अमीर कबीर लोग ज़कात भी अदा करते हैं। मैं यही कहने आई थी आपसे कि अगर आप ज़कात दें तो मेरे बच्चे चंद रोज़ के लिए ही सही पेट भर कर खाना खा लेंगे। आपके लिए हमारे दिल से दुआएं निकलेंगी। अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। कनीज़ रोती हुई हाथ जोड़कर ये बात कर रही थी। ये वही जानती थी कि इसने किस कदर हिम्मत जमा की थी। हाजी साहब ने ये सुना तो गुस्से से उठ खड़े हुए, चलते हुए कनीज़ के पास आए और अगले ही पल जो हरकत उन्होंने की कनीज़ के साथ, वो तो वहमो गुमान में भी नहीं था। वो तो नेक फरिश्ता सिर्फ इंसान समझती थी, मगर गैर महरम होने के बावजूद हाजी साहब ने कनीज़ को थोड़ी से पकड़कर दबोच लिया था। इसका मुंह दबोच कर कहने लगे, क्या मैंने कोई खैराती इदारा खोल रखा है क्या? मेरे घर के बाहर कोई बोर्ड लगा है कि मैं तुझ जैसों की मदद करूंगा? चल दफ़ा हो जा यहाँ से। बिला वजह मेरा टाइम ज़ाया कर दिया। इसने कनीज़ के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। कनीज़ वहीं पर गिरी थी। एक सिसकी थी जो इसकी हलक से निकली थी। अगले पल वहाँ पर काम करने वाली मुलाजमा इसे घसीटकर घर के बाहर भेज चुकी थी। कनीज़ तो रोते हुए वहाँ से चली गई। हाजी साहब इस वाक़ये को भूल गए थे, मगर उस दिन के बाद जो कुछ इनके साथ हुआ इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। अगली सुबह सहरी के वक्त जब उठे तो इनकी बड़ी बेटी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। आज तो उन्होंने अपने बड़े भाई के यहाँ अफ्तार के लिए जाना था। बड़ी बेटी को बुलाने लगे कि रोज़ा रखो, मगर वो अपने कमरे में ही मौजूद नहीं थी। सिर्फ एक खत पड़ा था कि वो अपने पसंदीदा लड़के के साथ भाग चुकी है, दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी, ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा। हाजी साहब ने ये अल्फाज पढ़े तो सीने पर हाथ रखकर गिर चुके थे।
انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہوا کیا ہے۔ ان کی بیٹی کیسے ان کی عزتوں کو روند کر جا سکتی تھی۔ گاؤں والوں کو پتہ چلا تو کیا ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں، دھیرے دھیرے ان کے کاروبار بھی ٹھپ ہونے لگے تھے۔ وہ 10 دکانیں ایسی ڈوبیں کہ الٹا حاجی صاحب قرض دار ہو گئے۔ بڑی بہن کی دیکھا دیکھی چھوٹی بہن بھی گھر چھوڑ کر بھاگ چکی تھی۔ حاجی صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ بھی اس قدر نافرمان نکلا کہ پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹنے لگا کہ میرے ماں باپ ایسے ہیں، صرف اور صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ ارے میری بہنیں کوئی دوسرے ملک میں پڑھائی کرنے کے لیے نہیں گئی، بلکہ گھر سے بھاگ چکی ہیں، اور اب میں بھی اپنے دوگلے باپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پورے گاؤں میں حاجی صاحب کی تھو تھو ہو چکی تھی۔ کاروبار الگ ڈوب چکا تھا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ گھر بھی بیچنا پڑا، قرض اتارنے پڑے اور ایک چھوٹے سے عام سے مکان میں رہنا پڑا۔ نہ ہی پاس اولاد رہی تھی اور نہ ہی دولت۔ وہ روتے تھے کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اب تو الٹا گاؤں والے حاجی صاحب اور ان کی بیوی کی مدد کے لیے ان کے ہاتھ پر 500 یا 1000 روپیہ رکھ کر جایا کرتے تھے۔ عروج سے زوال اس طرح بھی آ سکتا ہے، وہ بھی صرف زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ حاجی صاحب اس کا منہ بولتا ثبوت تھے۔